Good morning, students. This is your EVS class, and we are reading chapter number 2, Sensing the World. Okay, in this chapter, we will learn about our senses and good touch and bad touch also. So, let's start. Students, we get information about the world around us through our sense organs. We all know, students, we all have 5 sense organs in our body: eyes, nose, ears, tongue and skin. तो जो भी हमारे आसपास जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या मिलनी है इस वर्ल्ड में, इस सराउंडिंग में जहाँ हम रहते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी को किसके थ्रू मिलती है? सेंस ऑर्गन के थ्रू. दे सेंस थिंग अराउंड अस एंड सेंड सिग्नल टू आवर ब्रेन. अब ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे आसपास हो रही है, जो हम फील कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन को ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन को हमारे सिग्नल देते हैं. और उसके बाद क्या होता है? आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स दो सिग्नल एंड गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू विच आवर बॉडी रिएक्ट. और फिर जो ये सिग्नल हमारे ब्रेन को मिले, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग ब्रेन हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है और फिर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और ये सब बहुत क्विक होता है. Our sense organs thus help us to be aware about the things happening in our surroundings. तो इस तरह से जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है उसमें हम लोग अवेयर रहें, हमें किसी तरह का हार्म नहीं हो. ये किसकी हेल्प से होता है? सेंस ऑर्गन की हेल्प से होता है. We have 5 sense organs. These are our eyes, nose, ears, tongue and skin. Okay? So students, now we will try to understand all about our sense organs in detail. Okay? Students, sense organs. What is the meaning of sense? Sense is an ability to understand or react to something. Okay? Sense जो है वो हमारी वो एक एबिलिटी है जो हमें किसी भी चीज़ से रिएक्ट करना सिखाती है, कि हम किसी भी चीज़ को फील करके, सेंस करके हम रिएक्ट करें. दैट इज सेंस ऑर्गन्स. ऑर्गन्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. Therefore, the parts of our body such as eyes, ears, nose, tongue and skin that we use to see, hear, smell, taste and feel things are called sense organs. Okay? So students, I will tell you about our sense organs. Eyes, ears, nose, tongue and skin are our sense organs. They help us to feel and sensing around us. Our senses are closely linked with our brain. They send messages to the brain which tells us what to do. Eyes. Eyes are the organs of sight. They help us to see things around us. Our eyes are protected by the eyelids which can be closed to prevent dust or other particles or excess light from entering the eyes. Our eyes also help in expressing feelings. Eyes have tear glands also. Tears help to clean the eyes of dust particles. Next, ears. Ears help us to hear all kinds of loud, soft, sharp, dull, pleasant and unpleasant sounds. Like this. Ears, they also help us to recognize danger through sounds. For example, they hear the sound of a horn and send a message to the brain. The brain tells us to be careful and move away. The ears also help to maintain the balance of the body while walking, running and climbing. The ears also help to maintain the balance of the body while walking.
Nose. Our nose help us to smell. It has two openings called the nostrils which help us to breathe. Our nose can detect a variety of odors यानी कि smells. The tongue help us to taste. It has many taste buds which help us to sense different taste like sweet, sour, salty, bitter. The tongue also helps us to speak. The skin help us to feel sensation like cold, rough, smooth, hard, soft and sticky. ये सारे सेंसेस हमें स्किन से फील होते हैं. It also help in maintaining the body temperature by the process of sweetening. So, like इस तरह से students we have 5 sense organs, right? So students अभी हमने पढ़ा we have 5 sense organs: ear, eye, skin, nose and our tongue. Eyes help us to see. Ears help us to hear many sounds and also alert us about the dangers around us. Okay. And our nose help us to smell. Our tongue help us to taste sweet, sour, bitter, etc. etc. And the skin covers our whole body. स्किन क्या करती है? हमारी पूरी बॉडी को कवर्ड करती है एंड प्रोटेक्ट इट ऑल्सो. ओके, तो दस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. ओके students, our next topic is good touch and bad touch. Students, this is very important topic and we all have to know what is good touch and what is bad touch. Good touch which gives us happiness and makes us feel comfortable. Good touch क्या होता है students? Good touch वो touch है जिसको फील करके हमें हैप्पीनेस मिलती है या हम कंफर्टेबल फील करते हैं, वो टच कहलाता है गुड टच. एंड बैड टच, अ टच विच मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल. और बैड टच क्या होता है स्टूडेंट्स? वो टच जिससे हमें अच्छा नहीं लगता है, हम अच्छा फील नहीं करते और हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो टच कौन सा कहलाता है? वो टच कहलाता है बैड टच. हग फ्रॉम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कडलिंग पेट्स और होल्डिंग हैंड्स of a friend makes us feel nice and comfortable. अगर हमारे कोई फैमिली मेम्बर या हमारे पेरेंट्स अगर हमें हग कर रहे हैं या हमें हमारा फ्रेंड हमें टच कर रहा है तो हमें कैसा फील होता है स्टूडेंट्स? नाइस एंड कंफर्टेबल. तो दिस इज बिकॉज दे ऑल आर गुड टच. क्यों? क्योंकि ये कौन सा टच हुआ? गुड टच हुआ, जिससे हमें कंफर्टेबल फील होता है, हमें नाइस फील होता है, हमें अच्छा लगता है. But sometimes we feel uncomfortable when someone touches us. It leaves us feeling confused or scared. It may even hurt us. This is bad touch. But students, कई बार क्या होता है, कोई हमें टच करता है तो हमें अच्छा नहीं फील होता है, हम बहुत confused, scared होते हैं, confused होते हैं और हम uncomfortable फील करते हैं. तो ऐसा टच कौन सा कहलाता है? ये टच होता है bad touch. We must also remember students that nobody has the right to touch us. ये बहुत important point है students, आप सबको ये चीज़ याद रखनी है, remember रखनी है ये चीज़ कि किसी को भी हमें टच करने का right नहीं है. If the touch of a person makes us feel uncomfortable, then we have the right to stop that person from डूइंग सो. कोई हमें टच करता है और अगर हमें सडन फील हो रहा है कि वो टच अनकंफर्टेबल है तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे? हम उसको रोकेंगे. हमें उसे रोकने का पूरा राइट है और हमें ऐसा करना चाहिए. वी कैन टेल द पर्सन लाउडली दैट वी वॉन्ट हिम हर टू स्टॉप. और हमें ज़ोर से उस समय क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? शाउट करना चाहिए और उसको रोकना चाहिए.
We can also talk to some elderly person we trust or to our parents about that person. और फिर हमें दौड़ के भाग के किसके पास जाना चाहिए स्टूडेंट्स? ऐसे पर्सन के पास जिस पे हमें बिलीव हो, जैसे हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, या अगर हम स्कूल में हैं तो हमारे टीचर हो सकती है. तो ऐसे जने के पास हमें जा कर के उनको पूरी बात बतानी चाहिए, उनसे शेयर करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये आप लोगों को समझना चाहिए कि हम इस सराउंडिंग में जहाँ रह रहे हैं वह हर तरह के लोग होते हैं स्टूडेंट्स, और हमें बहुत सारे जने टच करते हैं. तो कौन सा टच कैसा है? जिस टच से हमें अनकंफर्टेबल फील हो उसे हमें रोकना चाहिए. वी शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड टच एंड द बैड टच. स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि टच कौन सा है, गुड है कि बैड है. We should stay away from the people who make us feel uncomfortable. और हमें ऐसे लोगों से हमेशा बिल्कुल दूर रहना चाहिए जिनके टच से हमें अनकंफर्टेबल फील होता है. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कोशिश की है कि आप इस चीज़ को समझ सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सा टच गुड है और कौन सा बैड है. लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रही हूँ. आप इसको देखिए, इसको वॉच कीजिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि विच टच इज गुड टच एंड विच टच इज बैड टच. ओके, लेट्स सी. बच्चों के साथ कुछ बातचीत करेंगे. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है? सबसे छोटी उम्र किसकी है? क्या उम्र है आपकी? 5.5. 5.5, 5 साल की हैं आप. वेरी गुड. और सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? क्या है आपकी उम्र? 10 साल. 10 साल. अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक वर्ड है, उसका मतलब जानते हैं आप लोग? आपने वो वर्ड सुना है, डेंजर? डेंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? खतरा. हाँ, खतरा. अब मुझे एक चीज बताइए कि खतरा का ऑपोजिट क्या है? खतरा का उल्टा क्या है? अतरा. खतरा का उल्टा अतरा. वेरी गुड. नहीं, मैं बताता हूँ. डेंजर का ऑपोजिट है सेफ. तो खतरा का ऑपोजिट है सुरक्षा. अच्छा, कोई सेफ्टी की चीज बताइए कि सेफ्टी क्या क्या है? हाँ, बोलिए क्या? फ्लोटर. अच्छा, स्विमिंग के टाइम पे जो हम लोग पहनते हैं फ्लोटर, वो सेफ्टी की चीज है. वेरी गुड. वाह 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 वाह. हाँ, आप बताइए सेफ्टी की चीज. हमको ग्लव्स पहनना चाहिए हमारे हेयर को कलर करने के लिए. बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम लोग बाल पे रंग लगाते हैं, हम लोग मतलब मम्मी डैडी, तो वो टाइम पे ग्लव्स पहनने चाहिए, वरना हाथ खराब हो सकते हैं. करेक्ट. आप बताइए. हाँ, जब सब गाड़ी रुकते हैं सिग्नल के लिए, तब उनके बीच में से क्रॉस नहीं करना चाहिए. हाँ, बिल्कुल ठीक. जीब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए. बच्चों, ये तो हो गई सेफ्टी की बात. अब मैं आपको बताऊंगा डेंजर की बात, मतलब खतरे की बात. हाँ, हमारी बॉडी पे 3 जगह है जो डेंजर जगह है, जहां किसी और को आपको कभी टच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए. कौन से वो 3 जगह डेंजर जगह बॉडी पर? ये देखिए, हमारे पास डायग्राम भी है. एक छाती, दूसरा टांगों के बीच में, और तीसरा बॉटम पे, मतलब पीछे साइड. ठीक है, फिर से बोलो. एक बॉटम, दूसरा चेस्ट, तीसरा पार्ट बिटवीन योर लेग्स. हाँ. अभी इसमें एक बहुत जरूरी बात है कि हो सकता है आपके मम्मी डैडी जब आपको नहला रहे हैं, तब वो शायद आपको यहाँ पे टच करेंगे नहलाने के टाइम पे. ठीक है, या कभी कभी डॉक्टर टच करेगा. लेकिन अगर माँ बाप साथ में हैं, तभी डॉक्टर आपको ऐसे छू सकता है, नहीं तो डॉक्टर भी नहीं छू सकता है. अच्छा, अभी अगर डेंजर जगह पे टच कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोग जोर से चिल्ला सकते हो? हाँ. चिल्ला के दिखाओ मेरे को. अरे बाप. ओके, वेरी गुड. तो अगर किसी बड़े आदमी ने आपको ऐसे गलत तरीके से गलत जगह पे, डेंजर जगह पे, ये 3 जगह पे कभी छुआ, तो आप सबसे पहले जोर से चिल्लाना. नहीं, ऐसा चिल्लाना. ओके. दूसरा, हम वहां से भाग जाएंगे.
भाग के किधर जाओगे आप? घर। आप भाग के जाओगे या तो घर जाओगे, यहाँ किसी सेफ जगह पे जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे जो वहां से नजदीक हो। कभी कभी आप घर पे नहीं हो, आप स्कूल में हो, तो आप स्कूल में अगर टॉयलेट में कभी किसी ने ऐसा किया तो आप भाग के टीचर के पास जाओगे, क्लासरूम में जाओगे, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओगे। और तीसरा, हमको मम्मी डैडी को बोलना है, या मम्मी डैडी हो सकता है उस वक्त ना हो, तो आप किसी ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, टीचर, कोई भी एक बड़े आदमी को जिसपे आपको भरोसा हो कि ये आदमी मुझे मदद करेगा, ये मुझे हेल्प करेगी आंटी, तो उसको बोलो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी आप सबको मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में, मुझे एक आदमी का नाम लो जो आपको लगता है ये मेरे भरोसे का आदमी है, जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं, ट्रस्ट कर सकता हूं, उसको जाके मैं बोल सकता हूं, जो आपका बॉडीगार्ड है। हाँ, सब आप बोलो। फादर, मदर, नानी, नाना। ओके, वन नेम फादर। फादर, फादर। तो ये आप अपने माइंड में तय कर लो कि वो कौन है। और आज जब आप घर जाओगे, आप उसको जाके क्या बोलोगे कि मैं आपको भरोसा करता हूं, आप पे ट्रस्ट करता हूं, तो आप मेरे बॉडीगार्ड हो। कभी कुछ होगा मेरे लाइफ में तो मैं आपको आके बोलूंगा। ये पहले से उससे बात करके रखने का। तो कोई आपको प्यार से गले लगाएगा तो उसमें कोई बुरा नहीं है, अंकल आंटी गले भी लगा सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगे कि अरे ये डेंजर जगह पे ये मेरे को क्यों टच कर रहे हैं, ये वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकते हैं, जहां आपको अच्छा नहीं लगा आप पहले क्या करोगे? चिल्लाओगे। दूसरा, आप वहां से भाग जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे। और तीसरा, अपने बॉडीगार्ड को बोलोगे। गॉट इट? सब समझ गए? एक्सीलेंट। हाँ, बोलिए क्या? जब लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल, बॉडीगार्ड को बोल के दो। तो स्टूडेंट्स, आपने मूवी देखी और आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच, एंड यू ऑल हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अभी आपने इस वीडियो में देखे और समझे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज चैप्टर। तो अब आपको क्या करना है? व्हाट विल यू डू? मैं आज आपको रिटन कंटेंट भी साथ में भेज रही हूँ। आपको अपनी जो EVS की कॉपी है उसमें वो सारा रिटन वर्क बहुत अच्छे से नोट करना है, उसको रीड करना है और उसको लर्न करना है। ओके, तो 2 चैप्टर्स हमारे फिनिश हो चुके हैं और अब आफ्टर समर ब्रेक व्हेन वी विल मीट, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। और मैंने आपको हॉलीडे होमवर्क का भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था आज लाइव क्लास में। हॉलीडे होमवर्क जो मैं आपको दे रही हूँ उसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको A4 शीट में सेंस ऑर्गन्स ड्रॉ करने हैं, या अगर आपको उनकी पिक्चर्स इजीली मिल जाती हैं जो स्टेशनरी शॉप पे इजीली अवेलेबल होती हैं, तो जब जैसे ही थोड़ी सिचुएशन ठीक होती है, यू कैन बाय द चार्ट एंड कट द पिक्चर एंड स्टिक दैट पिक्चर्स ऑन अ A4 साइड शीट। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप यू कैन ड्रॉ एंड कलर्स ऑल्सो। ओके, तो आपको ये सेंस ऑर्गन्स को स्टिक करना है, पिक्चर स्टिक करनी है या ड्रॉ और कलरिंग करनी है, और उसके नीचे उनका नाम लिखना है। और नेक्स्ट शीट में या शीट के बैक साइड में यू हैव टू राइट 2 or 3 लाइन्स फ्रॉम द बुक ऑफ ईच एंड एवरी सेंस ऑर्गन। ओके, हर सेंस ऑर्गन के बारे में आपको 2-3 लाइन्स लिखनी है, उन्हें रीड करना है और उन्हें लर्न करना है। तो इस तरह से आपको अपने सारे होमवर्क A4 साइज में की शीट में करने हैं। और फिर आप क्या करेंगे, EVS की जो 2 शीट्स आपकी बनेगी उनको आप स्टैपल करेंगे और एक फोल्डर में सारी शीट्स आप उसको रख लेंगे। और व्हेन वी विल मीट यू हैव टू सबमिट दैट फोल्डर, बिकॉज आपके इसमें मार्क्स ऐड होंगे। ये जो प्रोजेक्ट वर्क है इसके मार्क्स आपके ऐड होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम अब आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय करते हैं विद गुड स्माइल। ओके, सो बाय बाय।